Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So now we are going to see about how to solve this question, that is finding the largest sum contiguous subarray. Now what is the problem? Basically it is also the algorithm that is being used or that we are going to see today is also known as cadence algorithm. So basically our question is that we will be given an array and we need to find the largest sum of contiguous subarray. Okay, so we will also see how to approach this question and also the dry run part. So don't worry, I will just explain it once so that it will be clear to you all. Okay, so here is an example. So this is the given array. We need to find the largest sum of the contiguous subarray. Okay, so what we will do, we will just traverse this array. Okay, first we will traverse this array. We will start from index 0 and we will keep traversing. Now what we need is that we want the largest sum possible. Now for that what we need to sum it or we need to add it. Also we can see that there are negative values. Now there may be possible that if we will add the all the values, then there is a possible chance that we will get the value as negative and we don't want it. Yes, because we want the largest sum. So if it is coming as negative, then why to add all those things? We can just leave it and we will not add anything and we can make it as 0. Yes, because that would be the largest possible value. So what we will do, we will traverse the entire traverse through all the elements of the array, and what we will do, we will keep checking that whether the value of sum or whether the value of we will make a variable sum and we will keep checking that whether this value is becoming less than 0, and if yes, then what we will do, we will initialize it again to 0. Why we are doing it, I will explain it again. Now the second part is that we need the contiguous subarray. Contiguous subarray, this is very important. It is not written that we need to add all the elements. We can take the subarray. Now the subarray can be this, subarray can be this, subarray can be this, or even only this. Okay, so for that what we will do, first we need a variable sum that is initialized as 0, and then one more variable that is maximum so far. Why I am naming like this, I will tell you that. Okay, maximum so far, which will be providing us the maximum, the largest sum contiguous subarray. Okay, so for that, now what we will do, first thing that I have told you, that we need one variable sum and we will keep adding it. And one more condition will be there. What is that condition? If the sum is becoming less than 0, then just do this, sum equal to 0 again. Okay, and then what we have seen, that we need to keep track of all these sum, that whatever the sum is happening, whatever the, because what we need to check it for subarray. Yes, so for that what we will do, we will keep updating the value of the contiguous subarray as the sum of the contiguous subarray to max so far. So if max so far is less than sum, if it is less than sum, then we will update it as max so far equal to sum. Why we are doing it? Because we actually want the maximum sum that can be possible in the contiguous subarray. Yes, so if it is less than sum, then obviously we need to update it, and if it is becoming, like there may be chances that after adding all these value we are getting negative, then what we will do, we will initialize it as 0. Yes, so now we will see the code and I will explain it again by doing the dry run. Okay, so here I have written the code. You can see कि पहले हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है सम. ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते जाएंगे, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे एरे के एलिमेंट में, तो उसका सारा का सम हम लोग इसमें स्टोर करते जाएंगे. अब मैक्स सो फार क्यों ले रहे हैं, ये वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सारा का सम नहीं चाहिए. हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं मगर हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को मैक्सिमम
जो कंटिन्यूअस सब एरे में आ रहा है मैक्सिमम सम, उसको हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए मैक्स सो फार इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। अब हम लोग इटरेशन के लिए i इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, सो now here you can see that we are starting the while condition and the condition is n minus minus, means the whatever the size of the array is, it will decrease by 1, okay, till it comes to till it comes to 0. Okay, so then what is the next condition? We are keep traversing the array and we will keep adding it to the variable sum, as I have explained it already. And also the reason behind why we are checking for this, I will tell you that. Okay, then our next condition is if condition, that is we will keep updating this variable max so far, that is also known as the maximum sum of the contiguous subarray. It will be storing that, so it will be updating its value if it is less than sum. ओके, अगर मैक्सिमम सो फार का वैल्यू अगर लेस देन सम है, ठीक है, और सम अपना क्या स्टोर कर रहा है, सारा जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका सम को स्टोर कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स के वैल्यूज के। अगर वो छोटा है तो वो क्या होगा, उसमें अपडेट हो जाएगा। एल्स इफ का कंडीशन और एक मैंने अब हम लोगों ने डाला है, वो कंडीशन क्या कर रहा है, अगर सम जो है वो लेस देन 0 हो जा रहा है, मतलब कि निगेटिव हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या होगा, ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि अगर हम लोग का वैल्यू जो है, मतलब ऐड करते करते अगर वो निगेटिव में जा रहा है, उसका ऐड करने से अब कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम लोग वहीं पे उसका ट्रैवर्सिंग का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, या बेसिकली जो भी हम लोग अभी तक रिकॉर्ड रख रहे थे सम का, उसको वहीं पे 0 इनिशियलाइज कर दे रहे हैं और एक नया सब एरे का सम स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे ये कंडीशन का यूज हो रहा है, दैट इज एल्स इफ सम इज लेस देन 0, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रेक दैट ट्रैवर्सिंग पाथ, जो भी हम लोग पाथ फॉलो कर रहे थे वहीं पे रुक जाना है, और वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और मतलब एक नया सब एरे स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका सम हम लोग स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, ये तो कोड वाला पार्ट हो गया। बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3 चीज है। एक तो पहली बात, अपना सम और मैक्स सो फार करके हम लोग एक वेरिएबल रखे हैं, 2 वेरिएबल, और इसमें क्या कर रहे हैं, कंडीशन ये कर रहे हैं, तो ये ट्रैवर्स के लिए हो रहा है, सम में हम लोग स्टोर करते जाएंगे, कंडीशन रखेंगे मैक्स सो फार, जो सब एरे है उसका जो सम होगा उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे सम का, और अगर वो लेस देन 0 तो वहीं पे रास्ता हम लोग को क्या करना है, बंद कर देना, और i प्लस प्लस दैट इज दी एरे का इंक्रीमेंट करते जाना, और लास्ट में हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो अभी भी अगर कंफ्यूजन है, जिसको क्लियर हो गया है, तो हमको लगता है यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, मगर स्टिल मैं आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं क्या करूँगी, आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके फाइन, सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, -2, 5। ओके, तो हम लोग का जो ड्राई रन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सम में हम लोग इनिशियल वैल्यू, सम तो पहले 0 था, फिर एरे 0, तो 1 हो गया यहाँ पे। अब मैक्स सो फार हम लोग का क्या था, 0 है, तो वो ऑब्वियसली लेस देन सम है, तो मैक्स सो फार का भी वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, वो भी अब अपडेट होके 1 हो जाएगा। एल्स इफ में हम लोग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इफ वाला कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो गया है। अब समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है ये, यहाँ पे अब वैल्यू अपना क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, किसका, एरे का, तो अब ये फिर ऊपर जाएगा, फिर सम का वैल्यू अपडेट होगा, दैट इज 1 + 2, दैट इज सम में हम लोग को पहले से क्या था, 1 था, अब एरे आए, दैट इज एरे 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 + 2 अब हो गया 3। फिर से मैक्स सो फार का वैल्यू लेस देन सम है, यस, तो फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर कौन सा वैल्यू आया, 3 आया, तो 3 + 3 हो गया अपना 6। ओके, यहाँ पे फिर से अपडेट होगा और 6 हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आया पॉइंट, जो कि एक्चुअली अब दिमाग लगाने वाला पॉइंट आया है, वो है कि 6 - 2 क्या हो जाता है अपना, 4 हो जाता है, सम जो कि हम लोग का लेस देन है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स सो फार अभी तक हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 6। इसको ऐड करके या इसका ये वैल्यू को पॉइंट कंसिडर करके, ये सम को इन्वॉल्व करके, इस वैल्यू को इन्वॉल्व करके अपना घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, फायदा कहीं से नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, एल्स इफ में जाएंगे। फिर
एलसीएफ में चेक करेंगे कि सम लेस देन 0 है, नहीं यहाँ पे तो 4 आ रहा है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हम लोग i प्लस प्लस कर देंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट हम लोग गए, उसके बाद फिर 5 ऐड हुआ तो अपना आ गया 9 लास्ट वैल्यू सम करने के बाद। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स ऑफ आर से छोटा, मैक्स ऑफ आर जो है वो छोटा है किससे, सम से, तो वी विल अपडेट इट एंड वी विल टेक इट एज 9। तो अब आपको समझ में आ रहा है कैसे वो अपडेट हो रहा है, और हम लोग एक्चुअली ये पूरा एरे का सम को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को मैक्सिमम सब एरे या मैक्सिमम एक हम लोग को कंटिन्यूअस सब एरे का सम दे रहा है, दैट इज 9। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और ये एक्चुअली दी एक्चुअल एरे का सम है। और एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अगर जिन लोगों को क्लियर हो गया है वो लोग, आप लोग लाइक करके अपने रिव्यूज दे सकते हैं। एंड फॉर एक्सप्लेनिंग मोर आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, ताकि आप लोग को और क्लियर हो कि एक्चुअली में निगेटिव वाला पार्ट क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। ओके 9 4 that is -4, then 1 -8 -1 6। सी जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना होना, ड्राई रन करके चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपका ये चीज़ दूसरे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होगा। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कहीं भी, आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन पूछेगा। तो व्हाट वी विल डू, सम करेंगे, सम इक्वल टू पहले 4 आ गया, मैक्स ऑफ आर भी अपना क्या आया 4 आ गया। ठीक है ठीक है, अब हम लोग चेक करते जाएंगे ऐसे 4 देन -8 दैट इज -4। अब आप देखिएगा मैक्स ऑफ आर तो फिर अपना नहीं है छोटा सम से, तो वो कंडीशन नहीं चेक होगा, ये उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मैक्स ऑफ आर का वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे। वी विल गो टू नेक्स्ट दैट इज एल्स इफ सम इज लेस देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, हम लोग क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे 0 में। मतलब अपना यहाँ पे जो ट्रैवर्स करने का पाथ था वो यहीं पे रुक गया, मतलब अब इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज एक जो सब एरे था इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ये अब है ही नहीं अपने रास्ते में, हम इसको कैरी करके नहीं ले जाएंगे आगे। ठीक है, बेसिकली ये हो रहा है। ओके अब अपना 0 हो गया ये वापस से, फिर ऊपर गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ आई का वैल्यू, अब अपन यहाँ पे हैं। ठीक है, सम किए तो क्या आया अपना 9 आ गया। ठीक है 9 आया, बहुत बड़ा वैल्यू है मैक्स ऑफ आर से। मैक्स ऑफ आर पहले तब तक कितना रख रहा था, 4 रख रहा था, अपडेट करेगा अपने आप को 9 पे पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि अब 4 + 9 नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए क्योंकि हम लोग अपडेट कर रहे हैं बस बेसिकली। ओके फाइन 9, उसके बाद अपना क्या आया -4, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आया, सम का वैल्यू 5। क्या ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है? मैक्स ऑफ आर तो छोटा नहीं है सम से, तो वी विल नॉट बॉदर अबाउट इट, और ना ही सम का वैल्यू 0 से छोटा है, तो वी विल नॉट कंसिडर दैट। देन वी विल गो टू 1, 5 + 1 6, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देन अगेन 6 - 8 तो -2 हो गया, यहाँ पे भी गलती हो गया क्योंकि हम लोग क्या हो जा रहा है, अब निगेटिव में जा रहा है, सम का वैल्यू फिर से हम लोग 0 कर देंगे। फिर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर आपका 6 हो रहा है, इसको फिर से 0 किए होंगे हम लोग, फिर आपका 6 आ जा रहा है, जो कि एक्चुअली आपका मैक्स ऑफ आर को इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैक्स ऑफ आर जो आ रहा है वो एक्चुअली में 9 है, और वो बस इसको कंसिडर करने के बाद ले रहा है। और कुछ भी आप ऐड करिएगा, कोई भी सब एरे लीजिएगा, या सपोज आप इसी को लीजिएगा, तो 9 - 4 हो जा रहा है, 5 + 1 6, ये गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सब एरे है, सम आ रहा है, वो बस इसको लेने पे हो रहा है, दैट इज 9। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है गाइस कि आपको ये चीज़ क्लियर हो क्यों मैंने ये कोड किया है, इसीलिए मैंने समझाया ताकि आपको लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोच आप समझ सके। और आई होप ये एल्गोरिदम का डांस एल्गोरिदम आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।